right? You know, the look on Anuji's face is what everyone should know. Super performance. Can we have one more round of applause for Anmol this evening? हमने पूछ लिया, अभी मानवा से पूछेंगे. What was your experience doing the video? I'll quickly cut it short. It was a great team to be working with. There was EMI Records making their debut in India, which is internationally a very big name. You know, there was a talented singer, Anmol. I heard the song. I was like, it's a brilliant song. It's something I would play in my car once in release every now and then. Ooh, yeah, absolutely. अगर नहीं खास करते तो भी करता. And then eventually there was Mohit Suri involved, and when I got a call from Mohit Suri, I am his big fan. So that was the reason where it was when Mohit Suri was involved. I had to do it, and we went to the song. We had fun with it. You can see it. Yeah, we had a lot of fun in the show. Yeah. Thank you. So I don't think you should be surprised the next time Mohit calls you for a narration, right? My Records India. There we go! Woo-hoo! Come on, everyone! I can't hear it from any one of you now. Come on! Hi, बेचारे, the team members जिन्होंने मेहनत करके पैक किया. Beautiful. लम्हे Anmol Malik. EMI Records India with Mohit Suri. Now Mohit is going to be someone who is going to be in and around the office of UMG. That's because he's going to be personally looking into picking up good talent on the independent front. That's what the label is all about. So any independent artist under the house, you know who to go after. Thank you. Thank you. I'm actually known a lot more for my Bollywood songs. जैसे कि मैंने 2-3 गाने गाए थे जो पॉपुलर हुए, जैसे कि टल्ली या नागिन, and they're very hardcore Punjabi songs. तो nobody had seen that side of my voice. फिर एक पिक्चर आई थी बहुत बड़ी सुपर हिट, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, जो आनंद जी की है, and in that I had sung a song which was Old School Girl, and it was a jazz song. And it was a very soft song. जब मैंने वो गाना गाया तो लोगों को कनेक्ट नहीं हुआ कि ये वही लड़की जिसने एक टल्ली भी गाया, एक नागिन भी गाया. So I realized कि I have some side of my voice that I would like to explore, because my dad also, Shri Anu Malik ji, he's known for versatility. The kind of music he's given over the years, he tries to do all genres of music. तो मैंने भी सोचा कि it'd be great if my voice is versatile as well. So I tried to. I hope people like the song. I've tried to just explore a new part of my voice, and that was the idea behind it. Now I've been pitching to Universal Music for a very long time, and they were just launching EMI Records. So uske bhi auditions diye, and Devrat sir had this idea कि why don't you tell me your favorite band, and I said it's Coldplay. So then he's like, why don't you try recreating one of these songs? And I took the idea to my dad. There was Vineet sir also from EMI Records who was involved. And then we were told that Mohit Suri, if the song goes through, then Mohit Suri is the one who's going to be directing the video. I got overwhelmed. You and Mohit are face of the album as such, but how do you feel that Anu Malik giving the music of the album, Right. and Mohit Suri directing the album, Right. which makes more special? No, it does. Obviously, I'm very, very new to the industry. So for someone like me to get Anu Malik, giving the music, to have Mohit Suri saying, I'm going to direct the video, to have EMI Records India saying, we are launching you as the face. This is the first artist that's coming out from EMI Records. To have Devrat sir and Vineet sir say, the first single that comes out to launch this label is with you. It was a very big deal. I would say, I feel very blessed. B, I know it's a huge responsibility, so I've tried to work really, really hard. I've given it my 100%, and so has everybody who's worked on this video, on this song. And I just really hope somewhere, this song connects. ये जो गाना है वो लिखा गया है especially उन लोगों के लिए. हम लोग ने translation नहीं किया गाने का of Paradise. We've recreated the song. Recreate करके गाना, we sent it back to Coldplay. And we asked them, this is what we're going to be doing with the song. Are you happy? And with Coldplay's blessings, we've gone ahead with this single. And this song is dedicated to everybody who is heartbroken, who's been through a really bad breakup. This is the song for those people. I guess it's not a song for happy people, but I just want to tell people who are heartbroken, you guys are not alone. I guess, like I said before, it shows one side of my voice that a lot of people haven't heard, before.
there's a certain versatility that I'm trying to show. I'm trying to tell people I can sing, I can sing hardcore club numbers, I can sing Punjabi songs, I can sing jazz numbers, I can sing soft, romantic Hindi music. I, as an artist, want to push myself. I don't want to limit myself to one particular genre, and I'm hoping with this song I'm trying to prove that. And yeah, I don't know, I just hope people like the song. That's all I really want. I do have quite a few releases lined up, but right now I'm focusing on this one because it's outside, it's a very indie space, so it requires that kind of time and care and attention. This song is something that's come. This song is from the bottom of my heart, so it's actually a piece of me, and I'm trying to give it as much as love and attention as I can because this is very close to my heart, and all I need is support. मैं हमेशा ये मानता हूँ कि मेरी करियर के मेरी लाइफ के एक्चुअली नॉट इवन माई फिल्म्स के सुपरस्टार्स जो रहे वो मेरे नए म्यूज़िक डायरेक्टर्स और कंपोजर्स और लिरिक राइटर्स हैं। मैंने आज तक कोई इतने बड़े स्टार्स के साथ काम किया नहीं है। अगर आज मैं यहाँ आप लोग से बात कर रहा हूँ तो वो अनगिनत न्यूकमर्स है या फिर वो लिरिक राइटर्स है या वो म्यूजिशियंस है या सिंगर्स है। आई मीन मैं कहा होता अगर आतिफ असलम शायद मुझे नहीं मिलता है या मिथुन मुझे नहीं मिलता है या अंकित तिवारी या फिर अरिजीत सिंह या मुस्तफ़ा ज़ाहिद, आई मीन वो अनगिनत लोगों को मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ कि मैं आज इसलिए इधर खड़ा हूँ, नॉट ओनली फॉर माई फिल्म्स बट माई लाइफ आई एम सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ दैट। इट्स नॉट ओनली अबाउट यू आर मेकिंग फिल्म फॉर द लास्ट 1 डेकेड 10 साल से, लेकिन उससे पहले भी विशेष फिल्म महेश भट्ट फिल्मों का 100% रीज़न म्यूजिक ही रहा है, ये मानते हैं? नहीं, मुझे लगता है भट्ट साहब का स्टोरी भी सेंस और उनका डायरेक्शन का जो है, आई कैन नॉट टेक अवे द फैक्ट दैट my mentor has the best skills. I think he's one of the best directors and the legends we can ever have in this country. But yes, शायद कहीं ना कहीं एक जेनेटिक कोड शायद मिल गया है कि उनके फैमिली में एक सेंस है म्यूज़िक का। मुकेश जी को भी स्पेशली कितना अच्छा म्यूज़िक सेंस है, शायद वो जेनेटिकली इनहेरिट किया है। मुझे उसका क्रेडिट लेना गलत लगेगा, बट येस शायद उनकी ट्रेनिंग, उनका मेंटोरिंग ने आज मुझे वो स्किल अडेप्ट करने को सिखाया है। You are one of the most recognized and successful director of Bollywood. Wow. सिंगर डायरेक्ट करना कितना आपके लिए चैलेंजिंग था? मतलब आपने तुरंत वहीं भर दिया? पता है, मुझे लगता है कि मैं अपनी पहली फिल्म का रिलीज़ पे आया हूँ बिकॉज वही नर्वसनेस, वही एंक्शसनेस अभी भी है, क्योंकि 10 साल होने के बाद भी मुझे भी लगता है कि ये एक नया कदम है जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एंड मैं बहुत चाहूँगा कि इनके सक्सेस में, बट आई मीन टू से द आर्टिस्ट के सक्सेस में मेरी सक्सेस है। सो आई थिंक आई विश, आई होप दिस माई अटेम्प्ट एंड आई एम पुटिंग इन ऑल माई हार्ट इन इट एंड आई होप इट वर्क्स। आई थिंक ये इनका एक कॉन्शियस डिसीजन था, और मेरे राइटर जो मेरा असिस्टेंट भी था, इज़ अ वेरी केपेबल कॉल्ड सिद्धांत सचदेव, जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है इस कहानी की। अक्सर म्यूज़िक वीडियो में लोग नाचते गाते और डांस स्टेप्स मारते हैं। मुझे वो वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं, पर मैं उसमें इतना अच्छा हूँ नहीं। आई एम बेसिकली अ स्टोरी टेलिंग डायरेक्टर एंड आई थिंक दैट्स व्हाई माय राइटर सिद्धांत रोट सच ए ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट। और उसका मानना ये था कि मैंने कहा था लम्हे हैं, खुशी के मोमेंट्स बताओ, बट इससे नहीं, लम्हे वो भी होते हैं जो दर्द के होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट के होते हैं, और वही सच्चाई होती है। एंड दिस विल कनेक्ट मोर टू पीपल। ना सिर्फ वो फूल फेंकना और वो कांच तोड़ना भी एक लम्हे होता है। मैं अब तक उस लेवल पे पहुंचा नहीं हूँ जो मुझे लगता है कि किसी बहुत एस्टैब्लिश बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर का म्यूज़िक में रिक्रिएट करना चाहूँगा। मुझे याद है आशिकी के दौरान भी लोगों ने कहा था कि कौन सा गाना आप रिक्रिएट कर रहे हो। एक बहुत सीनियर फिल्म डायरेक्टर भी थे जिनका म्यूज़िक मैं बहुत मानता हूँ, उन्होंने भी कहा था कि आपको तो ये गाना धीरे धीरे से उस पिक्चर में रिक्रिएट करना चाहिए। और उस वक्त मैं तुम्हियों पे काम कर रहा था मिथुन के साथ। मैंने उनको कहा था कि सर मेरी फिल्म उस पर डिपेंडेंट नहीं है, और उन्होंने बहुत ऑनेस्टी से मुझे कहा था कि तुम शायद गलती कर रहे हो, आशिकी 1 का म्यूज़िक बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें वो गाना रिक्रिएट करना चाहिए। तो अब तक नहीं किया है, तो आई डोंट थिंक आई एम रियली डूइंग इट, बट आई थिंक दिस वाज अ सॉन्ग दैट अनुजी एंड दिस वन रिक्रिएटेड, जो एक कोल्ड प्ले का गाना है, जो उनके परमिशन से उन्होंने लिरिक्स भी चेक किया एंड वी रिक्रिएटेड इन हिंदी। बट आई थिंक इट्स गॉट इट्स न्यू कलर एंड इट्स गॉट इट्स न्यू ट्यून। लास्टली वन वाज एज एन इंडिविजुअल व्हाट डू यू फील कि लव स्टोरीज हमेशा पेनफुल होता है? अकॉर्डिंग टू फिल्म मुझे लगता है ज़िंदगी ऐसी होती है। आई थिंक लव स्टोरी खुशी भी होती है, पर वो
वो एक दर्द का मोमेंट आता ही है, वो एक मोमेंट आता है जब, और मुझे वही आई थिंक दैट इज़ लाइफ। आई थिंक यू कांट शाई अवे फ्रॉम इट। मुझे अक्सर लोग लगता है कि सिर्फ फूलों को मिलना या फिर पत्तों का उड़ना, वो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं होती है। आप खुद की लव स्टोरी देख लीजिए। Well, at the moment I'm still writing. I've just got a film that released 3 months back, but I'm trying to now, at this moment, trying to इसको develop करने की कोशिश कर रहा हूँ, because I genuinely believe in this. This is not something I'm looking to make money with, and I'm not doing this. It's something that is my way of saying thank you back to वो सब म्यूजिक डायरेक्टर्स को और कंपोजर्स को जिन्होंने मेरे को आज तक ये लेवल पे पहुँचाया। You're going to sing the song. Come on, are you singing for everybody? I will sing, but first you sing the song. ये है अनमोल मलिक Hi. और ये मोहित मारवा। और ये आज अभी गाना आपके लिए गाना गाएंगे लाइव परफॉर्मेंस। You have to sing कम the ऑन मैं तबला बजाता हूँ। Okay. रेसा रेसा बिखरा तेरा चेहरा तेरी आंखें सांसों में मेरी छुपके लेता है तू सांसें लम्हे 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 लम्हा से वो लम्हे। Thank you. Actually मैंने वो कंसिडर नहीं किया है। All I've been hoping for the song is कि somewhere when people hear it, they connect with it. I'm hoping because the song is dedicated to everybody who's ever had their heart broken, which is a lot of us. Yes. So album, yes, it was very overwhelming क्योंकि इतने बड़े नाम associated है इस project के साथ, तो responsibility तो I felt I had to work very very hard to deliver. We have Mohit Marwa who's acting in the video, Mohit Suri is directing the video, Devraj Sanyal, Vineet Thakkar who are from EMI Records. EMI Records India is being launched on this single, and we have Anu Malik and Manoj Dikshar who have helped recreate the song. So pressure तो बहुत था। मुझे लगता है कि ये खासियत है मोहित सूरी की कि जब भी वो कोई पिक्चर बनाते हैं, और इस केस में जो उन्होंने म्यूज़िक वीडियो बनाया है, वो अपनी छाप हर जगह छोड़ जाते हैं। जब भी आप ये वीडियो, अगर आपको नहीं भी पता होता कि मोहित सूरी का है, तो आप देख के बोल सकते हैं कि इसमें एक मोहित सूरी का टच है, विच आई थिंक इट स्पीक्स अ लॉट अबाउट द फिल्म मेकर कि हर बार वो कुछ अलग करते हैं, पर वो एक सिमिलैरिटी छोड़ देते हैं कि आपको लगे कि ये कनेक्ट मोहित सूरी का है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग, और मुझे तो उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। हमने एक्चुअली एक फिल्म की तरह, या हमने एक फिल्म की तरह इस पिक्चर को, इस गाने को शूट किया, एंड यू नो आई थिंक एवरी मोमेंट जो सेट पे हमने स्पेंड किया, वी फेल्ट दैट कि हम एक मूवी सेट पे थे, एंड और स्पेशली कि एक एक्टर के लिए उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि आपको वो सेम फीलिंग यू नो एक म्यूज़िक वीडियो में आ रही थी कि ये एक पिक्चर की शूट हो रही है। नो इट वाज एग्जैक्टली लाइक दैट। सो एंड मोहित सूरी इज अमेजिंग यार, मतलब और क्या बोलूँ उनके बारे। हाँ, बहुत सारे थे। There was a whole Mohit Suri hoodie. तो मोहित सर ही wears a hoodie always on set, and हमें टिप दिया गया था by the assistant कि अगर वो हुड ऊपर गया तो आप बहुत बड़ा गंदा शॉट दे रहे हो। We were always looking out for that कि हुड ऊपर नहीं जाना चाहिए। Did it go up anything? नहीं, but it was इनके साथ यू नो अगर आपको एक मोमेंट मुझे याद आता है कि जब हम दोनों जो है पहली बार जो वी मेट द फर्स्ट टाइम, हम पहली बार मिले सेट पे ही। मैं उसके पहले जानता नहीं था। आज तक मैंने अगर कोई पिक्चर की है या कोई यू नो कोई ऐड भी किया हो या कुछ व्हाटएवर यू डू, आप पहले क्या अपने आर्टिस्ट को मिल के आप अपनी यू नो इंटरेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहली बार मैं इनको सीधा सेट पे मिल रहा था, एंड वी हैड टू रोमांस इन द नेक्स्ट 1 आवर। तो मैंने बोला कि यार ये तो आनी रही मिलने, मैं ही जाता हूँ। तो मैं इनकी वैन में गया, ठक 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 वैन खोली, मतलब प्लीज़ हम 1 घंटा स्पेंड कर लें, आपस में बात करके जान लें, सो दैट यू नो जब हम शॉट दे रहे हो तो एटलीस्ट लगे कि यू नो कुछ। बट आई थिंक कि वीडियो बहुत मुझे तो बहुत पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो? या आई थिंक यू नो इट इज़ ऑल मोहित सूरी, और इसमें 2 मोहित थे तो हमें और भी मज़ा आया। लड़की हो या लड़का, एक डर रहता है कि रोमांस करना है वो भी अनुमान की बेटी के साथ। ये बात तो सही बोली आपने। तो आपको एक और कहानी बताता हूँ मैं कि हम एक शॉट दे रहे थे कि मोहित सूरी ने मुझे बोला कि आपको इसमें अनमोल का हाथ पकड़ के भागना है। तो मैं पहला शॉट जब देने गया तो
मैंने उनका हाथ पकड़ा और सडनली मेरा मॉनिटर की तरफ नजर गई और देखा मिस्टर अन्नू मलिक सेट पे आ चुके थे। तो अब शॉट तो देना था, तो क्या करते, तो वी फिनिश द शॉट और उसके बाद सीधा मैं अन्नू मलिक जी के पास गया और मैंने बोला सॉरी सर, मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा हूँ। सो ये ऐसा हुआ था, पर मैंने अपोलोजाइज करके काम किया। बिल्कुल, मैंने आपको बता दिया। आई थिंक ये गाने को आप एक बार और दो बार जब सुनते हैं तो आप पे ग्रो करता है गाना, और आई एम श्योर सबके साथ यही होगा कि आप इस गाने को प्लीज़ एक या दो बार की चांस दीजिए। जब आप इसको दो बार सुनेंगे तो ये गाना आप पे ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही एहसास भरा और बड़ा ग्रेट मोमेंट है, बड़ा अच्छा लम्हा है, और गाने के बोल भी लम्हे हैं, तो ये लम्हे चलते रहें। और आज जो रिएक्शन मिला है गाने का बहुत ही अच्छा मिला है, और मुझे मीडिया वाले से, जितने भी मीडिया भाई बहन हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं यहाँ, उन्होंने कहा कि आउटस्टैंडिंग सॉन्ग। आई थिंक मीडिया से रिएक्शन मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बिकॉज वो या तो चुप होकर चले जाते हैं, अपना काम करके निकल जाते हैं, लेकिन अगर बोल के मेरे सामने आके बैठे और बोला कि यार बहुत अच्छा लगा गाना, बोल अच्छे लगे, ट्यून अच्छी लगी, और खास करके अनमोल की गायकी बहुत पसंद आई। एंड आई वुड से कि मोहित सूरी की जो डायरेक्शन है, जो उन्होंने शूट किया, वाज आउटस्टैंडिंग। आई थिंक देखो, ये देवराज और विनीत ने मुझे जब बुलाया और कहा कि इस गाने पर, ये कोल्ड प्ले का गाना है, पैरा पैरा, इस पर कुछ कर सकते हैं, इसको इंडियनाइज कर दें। मैंने बोला चलो मैं कोशिश करता हूँ। मेरे जहन में लफ्ज़ आया लम्हे लम्हे, और मैंने बोला है, उनको बहुत पसंद आया देवराज और विनीत को, तो उन्होंने बोला लम्हे लम्हे बहुत अच्छा है, जिससे मैं गाता हूँ लम्हे 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 लाऊं कहाँ से वो लम्हे, ये बहुत पसंद आया उनको। मैंने मनोज को बुलाया, उसने लिखा रेजा रेजा बिखरा तेरा चेहरा तेरी आंखें, मुझे बहुत पसंद आया, और इस पर बहुत मेहनत की मैंने, अपने साउंड डिज़ाइनर्स ने। ये साउंड लाना बड़ा मुश्किल था, बड़ा चैलेंज था। फिर मोहित जी ने बोला, मोहित सूरी ने, कि इसको हम लोग इंडियनाइज करते हैं, तो उसके अंदर फ्लूट और सितार लाना बहुत मुश्किल था। बहुत मेहनत की, मुझे 4-5 महीने लगे टू क्रैक द साउंड, बहुत वक्त लगा है। अनमोल ने बहुत मेहनत की टू सिंग इट टू परफेक्शन, और आज जो रिएक्शन मिल रहा है, इतना अच्छा रिएक्शन मिल रहा है, मेरी आंखें भर आई।